morning students. Today we are continuing with mechanical properties of fluids. इसमें हम आज बात करेंगे streamline flow of the liquid, turbulent flow and laminar flow. We will talk about Reynolds number. We will discuss critical velocity, equation of continuity और हम बात करेंगे energy of the liquid in motion. सबसे पहले streamline flow. सबसे पहले आता है streamline flow क्या होता है. इसको समझने के लिए consider a tube and a liquid is flowing through this tube. Let us find out the value at different points, values of the velocities of the particles of the liquid at different points, P पे, Q पे, R पे. Let us say velocity of the particle of the liquid at point P is V1, at point Q is V2, at point R is V3. If all the particles which are following this path and all the particles which are passing through P, this point P, they should have the velocities V1. Q particle पे जो क्रॉस कर रहे हैं Q point पे जो क्रॉस कर रहे हैं particles, they have the velocity V2, and R पे जो particles क्रॉस कर रहे हैं R point को, तो वहां पे जो velocity of the particle है that is V3. Then the flow of the liquid is said to be streamline. तो streamline flow क्या है? What is streamline flow? That if the particles they follow the path of the preceding particle, जो पीछे particles आ रहे हैं ना, P Q R, P के बाद जो particle आ रहा है, P के पहले जो particle आ रहे हैं, when they cross this point P, they are having the velocities of their preceding particle, means V1 at P, V2 at Q, V3 at R. The particles which are coming after this, they are exactly following the same path and they have the same velocity at different points, same velocities at different points, means V1 at P, V2 at Q, V3 at R of that of the preceding particle. Then this flow is streamlined. Streamlined जो flow है, it is accompanied by streamlines. इसको हम represent करते हैं जैसे ये streamlines. और streamline क्या है? It is the path. It is the actual path. It is the actual path followed by the precession of the particles. It is path followed by the precession of the particles, group of the particles which have the same velocity as that of the preceding particles. ठीक है? In magnitude and direction, and also they are following the same path. अब वो streamline होता क्या है? Streamline जो word है वो क्या है? Streamline is a path tangent at any point to which a path can be straight or curved. Tangent and ये streamline है. Tangent at any point to which gives the velocity of the particle at that point. Tangent at any point to which gives the velocity of the particle at that point. अगर सीधा होगा तो straight, it is already tangential. और अगर curved होगा, path can be straight or curved. Tangent at any point to which gives the velocity. ठीक है? Direction of velocity. Two streamlines can never cross each other. मतलब ये कट नहीं कर सकते, ये ऐसे नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया, एक टेंजेंट ये, तो इसका मतलब जो वाटर का जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ लिक्विड का, वो उधर भी है और इधर भी है. तो फ्लो जो है उसका जो स्टडी
वो ही खत्म हो जाएगा, जो स्टैटिक नेचर है वो ही खत्म हो जाएगा. सो a streamline flow of the liquid, these two streamlines can never intersect each other. These are the important, this is the important characteristic of the streamline. Crowding of the streamlines का क्या मतलब है? जहाँ पे बहुत सारी streamlines at a certain place है, तो जो वो क्या show करते हैं? Means velocity of the liquid at that place is very large and vice versa. अगर streamlines they are at a distance from each other, तो what they represent, वो represent करती है कि velocity of the liquid जो है वो less है. तो this is how we define streamline flow. इसके बाद आता है laminar flow. इसके बाद है laminar flow. मान लीजिए ये horizontal surface है, ये horizontal surface है, and there is a flow of the liquid. There is the flow of the liquid over a horizontal surface, and this liquid is in the form of layers. In the form of layers with different velocities. They are not mixing with each other. Mix नहीं हो रही. They are in the form of layers, and they have all the layers have different velocities. The liquid, if it is in the form of layers, flow of the liquid, if it is in the form of layers, then this flow is known as laminar flow. याद रखो कि जो laminar flow है that is a streamline flow. और streamline flow की एक और important इसका point है to be noted कि streamline flow, इसमें flow of the liquid is up to a certain velocity जिसको हम critical velocity कहते हैं. तो streamline flow में जो velocity of the liquid है वो critical velocity से हमेशा कम रहता है. तो that is a streamline flow. और laminar flow is a streamline flow. Means flow of laminar, if the flow is laminar, then the velocity of the liquid will be less than the critical velocity. तो critical velocity एक हमने reference है कि इस velocity हर लिक्विड की अपनी अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी है. इस वैल्यू से अगर लिक्विड कम वेलोसिटी पे फ्लो कर रहा है देन इट इज स्ट्रीमलाइन. अगर अबव है तो देन द फ्लो इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो. इफ द this velocity of the flow of the liquid becomes greater than the critical velocity, in that case it becomes turbulent. Laminar flow is in the form of layers, but laminar flow is also a streamline flow, right? But turbulent flow is that flow in which the velocity of the this flow of the liquid it becomes greater than critical velocity. उसमें क्या है कि उसमें जैसे यहाँ पे streamline flow में तो ये किया था ना कि जो receding particle, जो particles आ रहे थे, they had the same they had the same velocity as that of their preceding particles. अगले वाले particles की ही velocities होती थी पॉइंट पे, और also they were following the same path. लेकिन turbulent flow में क्या है कि velocity same नहीं होती. मतलब जो अगले particles आएंगे, successive particles आएंगे, उनकी जरूरी नहीं है कि P पे V1 हो. P पे they can have some another velocity. Q पे they can have some another velocity. They may not follow the same path. उसको हम बोलते हैं turbulent flow. टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन फ्लो को डिफरेंशिएट करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है. हम क्या करते हैं, एक नैरो ट्यूब लेते हैं, ट्रांसपेरेंट नैरो ट्यूब लिया और उसको टैप के साथ कनेक्ट कर दिया. टैप को ओपन किया धीरे से आप टैप को ओपन किया, ठीक है, और बिल्कुल धीरे धीरे से फ्लो जो है लिक्विड का फ्लो हो रहा है, ठीक है. अब उसमें थोड़ा सा एक चुटकी स्पेक, कहते हैं स्पेक ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया. कलर हो जाता है, वो कलर होता है, उससे क्या है कि मिचंटा सा कलर आ जाता है. अब वो जो कलर है वी विल फाइंड व्हेन द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन. अभी हमने धीरे से बोला हुआ है दैट पोटेशियम परमैंगनेट इट विल फ्लो अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब. बड़ा स्मूथ सा एक लाइन के अलोंग आएगा.
लेकिन अगर टैप का हमने वेलोसिटी हमने टैप थोड़ा जोर से खोल दिया तो वेलोसिटी बढ़ गई, मे बी इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्या होगा, वो सारा मिक्स हो जाएगा, वो सारे का सारा पूरे उसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन टर्बुलेंट फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन। इसके बाद आता है आफ्टर दिस वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी हम बात कर रहे हैं ना कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो। हमने कहा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो इज दैट फ्लो व्हिच हैज वैल्यू बिलो द क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्बुलेंट फ्लो इज दैट वैल्यू व्हिच हैज वेलोसिटी मोर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है ना, जिसके नीचे वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है और जिसके ऊपर जो है वो टर्बुलेंट। क्रिटिकल वेलोसिटी इज VC is equal to K eta rho r। इसको हम यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी स्टोक्स लॉ जब कैलकुलेट किया था F is equal to 6 pi eta r, तो वो हमने कैलकुलेट किया था यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। एग्जैक्टली हम ऐसे ही करेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ट्यूब इन विच द लिक्विड इज फ्लोइंग। अब इसको हम लिख सकते हैं VC is equal to K eta A rho B R C। इसमें डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखना शुरू करते हैं। M0 L T minus 1 L1 T minus 1 K। अब हमें ये पता है eta का M L minus 1 T minus 1 rho M L minus 3। दिस इज A, दिस इज B, R की जगह हम लिख सकते हैं LC। अब इसको ओपन करते हैं, K M A प्लस B L माइनस A माइनस 3B प्लस 3 T माइनस A। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स M का क्या है, A प्लस B इज इक्वल टू 0, L की पावर क्या है माइनस A माइनस 3B प्लस C इज इक्वल टू 1, माइनस तीसरा T को कंपेयर करो, माइनस A इज इक्वल टू माइनस 1, तो आपके पास आ गया A इज इक्वल टू 1 फर्स्ट, यहाँ पे B इज इक्वल टू माइनस 1 सेकेंड। ये वैल्यू A और B की इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, आपके पास आ जाएगा C इज इक्वल टू माइनस। अब ये वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू K, A कितना है 1, रो B कितना है -1, C कितना है -1, तो आपके पास क्या आ जाएगा VC इज इक्वल टू K eta rho r। और यही हमने कैलकुलेट करना था, यही मैंने जो फॉर्मूला दिया था यही दिया था। तो दिस वी हैव प्रूव्ड दिस, वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आपने क्या किया, क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी, डिपेंडिंग अपॉन रेडियस ऑफ द ट्यूब, eta M L minus 1 T minus 1 already we have done, rho mass per unit volume R L। फिर वैल्यूज पुट कर दी हमने डायमेंशनल फॉर्मूलाज एंड कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स वी हैव कैलकुलेटेड A is equal to 1, B is -1, C is equal to -1, so we get BC is equal to K eta upon rho R। क्लियर, फाइन। इसके बाद आता है आफ्टर दिस वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इज a pure number which tells us about
नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड। अब रेनॉल्ड नंबर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन, this is the expression for the Reynolds. NR, this is how Reynolds number is related with critical velocity, and we can write NR equal to VC rho V upon meter. It doesn't have dimensions because it is a number only, and this determines the nature of the flow of the liquid. अगर तो 0 to 2000 है value, then this flow is streamline. अगर 2000 to 3000 है तो turbulent flow है, 2000 से 3000 तक अनस्टेबल है, कभी वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है और इट कैन बी turbulent. तो रेनॉल्ड नंबर हमें ये बताता है कि अगर हमें वैल्यू पता है, अगर हमें ये वैल्यू पता है कि रेनॉल्ड नंबर की कितनी वैल्यू, हमें पता चल सकता है कि ये फ्लो जो लिक्विड का है वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है. क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन में साथ में पूछा गया वेदर दिस फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट. क्लियर. इसके बाद आता है देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. Equation of continuity. Equation of continuity, इसके लिए हमने क्या करना है? This is the relation between area of cross section of the tube with the velocity of the flow of the liquid. Let us say consider a tube which has different area of cross section at both the ends. Let us say area A1 is the area of cross section at A, and at B area of cross section of the tube is A2. Velocity of the flow of the liquid is V1, and velocity of the V1 at A and V2 at B. Now let us say liquid is entering through A and it is coming out from B. Liquid is entering through A and coming out from B. Then what happens and how we relate this area of cross section with the velocity and what is the equation of continuity. Let us say volume of the liquid entering per second at A. Entering per second at A. एरिया वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू डिस्टेंस. तो एरिया डिस्टेंस क्या है? वेलोसिटी इंटू टाइम. टाइम कितना है? 1 सेकेंड. सो इट विल बी A1 V1. क्लियर. फाइन. वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड लीविंग per second at B. It will be same way A2 V2. Density of the liquid at A is, let us say, A. Density of the liquid at B is, say, B. Mass of liquid entering per second at A. Volume into density. इसी तरह मास ऑफ द लिक्विड लीविंग पर सेकेंड एट बी. A2 V2. अब जो लेट अस से जो लिक्विड है इट हैज सेम डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लो. तो इट मीन्स ρ1 इज इक्वल टू ρ2. अब बीच में से तो कहीं लिक्विड गया नहीं, जितना लिक्विड एंटर किया उतना लिक्विड बाहर निकला. देयर इज नो लॉस ऑफ द लिक्विड इन बिटवीन. तो इसका मतलब मास ऑफ द लिक्विड व्हिच इज एंटरिंग पर सेकंड एट A इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड लीविंग पर सेकंड
फ्लो इज इक्वल टू A2V2। ये कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। दिस इज इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। दिस इज इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी मीन्स AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। टैप वाटर जब हम खोलते हैं तो अगर आपने टैप खोला हुआ है, ठीक है, तो उसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस जो ट्यूब है, टैप का जो है ओपनिंग है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इट हैज सम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वाटर इज कमिंग आउट, वेलोसिटी, इट विल हैव सम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड। आप टैप के उसके ऊपर थंब रख दो सो दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम हो जाए, तो क्या देखोगे आप, एकदम फ्लो ज्यादा हो जाता है। आपने नोटिस किया ना, फास्ट हो जाता है वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। इसी तरह जब आप एक पाइप लेके पानी डाल रहे होते हो गार्डनिंग जब करते हैं तो प्लांट्स को वाटर दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो आपने क्या नोटिस किया, अगर आप ट्यूब को, अगर जो पाइप है उसका जो ओपनिंग है तो उसको अगर आपने ऐसे डाल दिया तो फ्लो बहुत स्लो है, उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड ऑफ द फ्लो इज वेरी स्लो। लेकिन जब आप उसको दबा देते हो तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है और उससे क्या है, पानी बहुत तेजी से निकलता है। यू मस्ट हैव सीन दिस। इसलिए हम बोलते हैं जो डीप वाटर जितना डीप होगा ना, इट रन्स वेरी स्लो। क्वेश्चन भी आता है व्हाई डीप वाटर रन्स स्लो, तो दिस इज बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेरी लार्ज एंड सो वेलोसिटी कम लेस। ओके फाइन, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, आगे भी कहीं कहीं यूज होगा। इसके बाद आता है एनर्जी, डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द लिक्विड व्हेन इट इज इन मोशन। We will talk about how the liquid in motion, it has pressure energy, it has potential energy and it has kinetic energy. अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर एनर्जी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड, एनर्जी ऑफ द लिक्विड। मान लीजिए this is liquid which is contained in a vessel and here we have some opening. Above this opening, height of the liquid is h and this is the piston. This is the piston. Now pressure energy is the energy of the liquid by virtue of its pressure. इसको मेजर कैसे करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे ये इसका यहाँ पे क्या है, पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन को जब हम पुश करेंगे तो ये जो लिक्विड मूव करेगा, इट हैज टू मूव अगेंस्ट, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस प्रेशर। ये प्रेशर लग रहा है ना, इस जो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर है उसके कारण उसको काम करना पड़ेगा एंड दैट वर्क डन इज मेजर ऑफ प्रेशर एनर्जी। That work done against pressure when you push the liquid inside. When you push the liquid inside against this pressure, this work done is measure of pressure energy. The work done against pressure, work done, this is equal to force into, let us say, हमने जो अंदर की और डिस्प्लेसमेंट किया, that is x. Without imparting any velocity means movement के कारण, velocity के कारण वो काम नहीं देखना, हमने देखना है force, वो हमने लेनी है which is just to against the pressure. So we are not imparting any velocity, बड़ी तेजी से नहीं कर रहे हैं, very slowly we are pushing it inside against the pressure so that जो force है that is only against this pressure. तो ये क्या है, प्रेशर इनटू एरिया, लेट अस से एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन,
जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज A. So this is PAX. This is equal to, this work done is measure of this pressure energy. Work done is measure of pressure energy. Pressure energy per unit mass. Pressure energy per unit mass. P into A into X. Mass, volume into density, area of cross section of that opening, X is distance moved, तो ये हो गया area into that area of cross section into this distance X, that will volume. So you will have M is equal to AX root. AX root. ये कैंसिल आपके पास आ गया P upon rho. Pressure energy per unit mass is P upon rho. And if you write pressure energy per unit volume, this is equal to PAX. Volume कितना है? AX. कैंसिल, ये आ गया P. ये आ गया pressure energy per unit volume is P. Pressure energy per unit mass is P upon rho. ये बेटे प्रेशर एनर्जी, ये जब इसकी बात कर रहे हैं ना हम कि हाउ वी कैलकुलेट प्रेशर एनर्जी, हाउ वी विल कैलकुलेट टेंशन एनर्जी, हाउ वी विल कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, ये सारा यूज होगा, ये सारी जो टर्म्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, यूज होंगे जब नेक्स्ट आर्टिकल में नेक्स्ट टाइम हम बर्नौलीज थ्योरम करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टाइम, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम. तो ये सारी चीजें अब इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द लिक्विड above the surface of the earth. Potential energy. Potential energy, mass m, acceleration due to gravity, h is the height above the surface of the earth. This is pressure energy of the body is energy by virtue of its position above the surface of the earth. अब लिक्विड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे we are considering mass of the liquid, acceleration due to gravity and height. Potential energy per unit mass of the liquid mgh. This is GH, potential energy per unit mass. Potential energy per unit volume mgh. Volume is हमें पता है density is mass per unit volume. M is equal to volume into density. तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा? mgh is equal to m upon rho. m कैंसल, ये आ गया rho gh. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम rho gh, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास gh. क्लियर? ठीक है, फाइन. इसके बाद आता है आफ्टर दिस वी कैन हैव थर्ड वन. कौन सी थी? काइनेटिक. ये ले लेते हैं हम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन. एनर्जी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, possessed by the liquid by virtue of its motion is known as kinetic energy. Kinetic energy of the liquid due to its motion is given by half mv square. इसके लिए हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय m. तो आपके पास आ गया हाफ v स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर. और ये आ गया वॉल्यूम. m अपॉन v क्या है? रो. हाफ रो v.
So now we have calculated different mathematical expressions for pressure energy, potential energy and kinetic energy. तो ये जो सारे expressions हैं, ये जो terms हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ये यूज होंगे नेक्स्ट आर्टिकल में, बर्नौलीज थ्योरम में,